یہ جو زمانہ آپ پر گزر رہا ہے اس کا حساب ہوگا بے شک والعصر، اللہ نے اس وجہ سے قسم اٹھائی کہ مجھے زمانے کی قسم۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کا دوسرا معنی بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس سے مراد عصر کا وقت ہے، زمانہ نہیں، اس سے مراد عصر کا وقت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی اہمیت کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ فجر کے وقت کی بھی اللہ کے ہاں بڑی اہمیت ہے اور عصر کے وقت کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے ایک مثال دی بڑی باکمال، انہوں نے کہا کہ دیکھیے بندہ صبح تجارت کے لیے بازار میں اپنی دکان کھولتا ہے، جب شام کا وقت ہونے لگتا ہے تو اسے یہ حرص ہوتا ہے، اسے یہ چاہت ہوتی ہے کہ میرا مال جلدی جلدی بک جائے۔ سبحان اللہ۔ تو انسان تیری زندگی کی بھی ہر گھڑی سمجھ کے شام ہے، سمجھ کے عصر کا وقت ہو چکا، پورا زندگی کا دن گزار چکا ہے تو، اب زندگی کا آخر ہے، تو اس کو اہم سمجھ، اللہ بھی اس وقت کو اہم سمجھ رہا ہے، اس لیے اللہ قسم اٹھا رہا ہے والعصر، مجھے عصر کے وقت، مجھے عصر کے وقت کی قسم ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، ہر لمحہ اس کا گزرتا چلا جا رہا ہے، اس کا خسارہ ہوتا جا رہا ہے، اس کا گھاٹا ہوتا جا رہا ہے۔ بندے تو اپنے وقت کو مصروفیت میں لا، نیک مصروفیت میں لا، تاکہ تو خسارے سے بچ جائے، ورنہ ہر انسان خسارے میں۔ مجھے قسم ہے عصر کے وقت۔ اور تیسرا معنی حضرت امام راضی فرماتے ہیں اس کا ہے کہ مجھے عصر کی نماز کی قسم ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے مجھے عصر کی نماز کی قسم ہے، کیونکہ 5 نمازوں میں عصر کی نماز کی زیادہ اہمیت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو صلاۃ وسطیٰ کہتے ہیں، درمیانی نماز، 2 ادھر 2 ادھر، یہ درمیان والی نماز، صلاۃ وسطیٰ۔ اللہ کے ہاں اس نماز کی بڑی اہمیت ہے، سبحان اللہ۔ بڑی اہمیت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ۔ سبحان اللہ۔ سنیے، عصر کی نماز چھوڑنے والے کے بارے میں میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس نے اتنا بڑا نقصان کیا، اتنا بڑا نقصان کیا کہ جتنا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے گھر والوں کو اور ساری اپنی کمائی کے مال کو برباد کر دے، پورا خاندان برباد ہو جائے، ایک طرف پورا مال برباد ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا اس بندے نے عصر کی ایک نماز چھوڑ کے اتنا بڑا نقصان کیا۔ میری دعا۔ آپ کی تو مجھے تو کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں جی، بڑے بڑے یقین سے ہاں جی پڑھتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ کون سی؟ ساری؟ کہتے جی فجر، بس فجر۔ کیا صرف فجر کی نماز آپ پر فرض ہے؟ کیا صرف فجر کی؟ پتہ ہے اس میں کوتاہی کیا ہے؟ آپ نماز نہیں پڑھتے نا، ایک تو آپ اپنا وبال اپنے اوپر لے رہے ہیں، آپ کو دیکھ کے آپ کی اولاد بھی نہیں پڑے گی۔ دیہات کے لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہوں۔ صبح کے وقت جو بندہ سورج طلوع ہونے تک سویا رہے نا، اس کو آپ نحوستی کہتے ہیں، کہتے ہیں نا جی، نحوست پھیلائی۔ ایسے ہی فجر دیکھو سورج طلوع تھی کہ حالی تک بھی جناب ستا پہ، آپ اس کو نحوستی کہتے ہیں نہیں کہتے؟ اور بھئی جو سو کے نماز چھوڑ رہا ہے، بیچارہ سویا ہے، اس کی آنکھ ہی نہیں کھلی، آپ کے نظریے کے مطابق وہ نحوستی ہے، تو جو جاگ رہا ہے ظہر عصر مغرب عشاء چھوڑ رہا ہے اس کا کیا حال ہے؟
वो तो सोया हुआ है, उसने छोड़ दी है तो चले, कुछ कमी तो है, सोना तो नहीं चाहिए उसे भी, उठ जाना चाहिए, पढ़नी चाहिए। ये जो जाग के छोड़ रहा है। मेरे नबी ने फरमाया इतना बड़ा नुकसान है। बल्कि एक और रिवायत सुनिए, एक और हदीस सुनिए। इन इमरातन, एक औरत थी, तसीहु फी सिककिल मदीना, वो मदीने की गलियों में चीख चीख के पूछ रही थी, नबी मुअज़्ज़म कहाँ है, नबी मुअज़्ज़म कहाँ है, नबी मुअज़्ज़म कहाँ है। साहबा ने बताया इस तरफ तशरीफ फरमाया। वो चीखती हुई हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई। सुनिए, सुभान जरा अल्लाह। अपना अपना मुहासबा कीजिए। वो औरत जब हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई, मेरे नबी ने पूछा, क्यों चीख चीख के मेरा पूछ रही हो? कहने लगी, मेरे प्यारे नबी, दरअसल हुआ यूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मुझे पछतावा हो गया। अब बताओ। मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुई हूँ, मुझे बताइए कि क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? फरमाया, क्या हुआ? कहने लगी, मेरा शौहर नहीं था, मुझसे जिना हो गया, मेरी तौबा। मुझसे जिना हो गया। फिर यहाँ तक सिलसिला नहीं रुका, जिना से बच्चा हो गया। जब वो बच्चा पैदा हुआ, मैंने मार डाला। इन्ना लिल्लाह। जब वो बच्चा मर गया, फिर सिलसिला यहाँ नहीं रुका। हुजूर मैंने उस बच्चे को सिरके के मटके में डाल दिया, सिरके के मटके में डाल दिया, तो सिरके की वजह से वो बच्चा गल गया। फिर मेरा गुनाह यहाँ नहीं रुका, मैंने वो सिरका किसी को बेच दिया। हुजूर बताइए मेरी तौबा कबूल हो? फरमाया, जो तू गुनाह करके आई है, तूने जो जिना किया है, तू शादीशुदा है, रजम होगी। तूने जो एक जानदार को कत्ल किया है, बेकसूर जानदार को कत्ल किया है, तुझे जहन्नम होगी। मेरी तौबा। जो तू वो सिरका बेच के आई है, तूने बहुत बड़ा कबीरा गुनाह किया है, उसकी अल्लाह के हुजूर सजा है। उसके बाद मेरे नबी ने जो फरमाया, अपने अपने दिल पे हाथ रख के खुद अपने ज़मीर से पूछे। मेरे नबी ने फरमाया, लाकिन ज़ननतु अन्नकी तरक्ति सलातल अस्र, मुझे लगता है कि तू इतने गुनाह करके आई है, मुझे लगता है कि तूने कोई असर की नमाज छोड़ी है, मुझे लगता है कि तू इतनी मुसीबतों की शिकार हुई, तू इतने गुनाहों की शिकार हुई, तूने रब की इतनी नाफरमानी की, मुझे लगता है कि तू कोई असर की नमाज छोड़ चुकी है। उस एक असर की नमाज छोड़ने की वजह से तू इतनी मुसीबतों की शिकार हो गई, तू इतने गुनाहों के बबाल में आ गई, मुझे लगता है तूने असर की नमाज छोड़ी। तो बंदे खुदा के कहाँ बैठे हो? किधर फिर रहे हो? किस वहम में मुब्तला हो? किस गुमान में हो? किस खुशगुमानी में हो? कहते हो हुक्मरान अच्छा आ जाए हालात बदल जाएंगे? नहीं बदलेंगे। ये फजर की, असर की, जोहर की, मगरिब की, तुम तो सिर्फ असर की नहीं सारी छोड़ रहे हो। मस्जिद के पड़ोस में बैठ के नमाज छोड़ के बैठे हो, फजूल में वक्त गुजार रहे हो, गपशप में गुजार रहे हो, नमाज छोड़ रहे हो। एक असर की नमाज छोड़ने की वजह से इतनी बबाई, इतनी बवाल, तो फिर आप कैसे मुसीबतों से बच सकते हैं? ये मुसीबतें तुम्हारे ऊपर अगर हैं, तुम्हारे अमाल की वजह से, तुम्हारे करतूतों की वजह से। आज सच्ची तौबा कर लो, आज सच्ची तौबा कर लो, तब इनकलाब आएगा, वरना ये हुक्मरानों से इनकलाब नहीं आएगा, ये जागीरदारों से इनकलाब नहीं आएगा, ये वडेरों से इनकलाब नहीं आएगा। इनकलाब आएगा आपकी सच्ची तौबा से, अल्लाह की तरफ रुजू करने से। असर की नमाज की अल्लाह के हुजूर कितनी अहमियत है, असर की नमाज की कितनी अहमियत है। मेरे नबी ने फरमाया कि असर की नमाज की ये अहमियत है कि अपने घर वालों को बर्बाद कर दे, अपने माल को बर्बाद कर दे, मगर एक असर की नमाज की तलाफी नहीं। अंदाजा कीजिए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसलिए कसम उठाई, वल असर, मुझे कसम है असर की नमाज की। इंसान खसारे में है, इंसान खसारे में। चौथा माना, आखिरी माना इमाम राजी ने जो किया वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद गुफ्तगू खत्म करता हूँ आपके और
बहुत सारे लोगों के शायद मकसद के दरमियान मैं हाल बैठाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इमाम राजी फरमाते हैं यहाँ असर से मुराद हर असर नहीं, हर जमाना नहीं, बल्कि यहाँ असर से मुराद वो खास जमाना है जो रसूलुल्लाह का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं कि क्योंकि उस जमाने को हुजूर के साथ निस्बत हो गई और जिस चीज को मेरे नबी के साथ निस्बत हो जाए वो चीज आम नहीं रहती, वो खास बन जाती है, बल्कि इतनी खास बन जाती है कि अल्लाह भी उसकी कसम उठाता है। सुभान अल्लाह। इसलिए कभी कहता है वद्दुहा, मुझे चाश्त की के वक्त की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, मुझे आपके काले बालों की कसम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी या अय्युहल मुद्दस्सिर, कभी या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। हुजूर की हर निस्बत की बात अल्लाह रब्बुल इज्जत करता है और इनकी कसमें उठाता है। सुभान अल्लाह। वो फरमाते हैं कि इससे मुराद हुजूर के वक्त की खास असर की नमाज। सुभान अल्लाह। एक आशिकाना तफसीर भी है, इसको सूफियाना तफसीर भी कह सकते हैं। ये तो तफसीरें थी इल्मी बुनियाद पर, एक है मोहब्बत की बुनियाद पर, इश्क की बुनियाद पर। सूफियाना तफसीर, सूफियाना तफसीर ये है, सूफिया फरमाते हैं यहाँ वल अस्र, इससे मुराद ये है कि हुजूर जिस वक्त सूरज गुरूब हो रहा होता है तो उसकी सुर्खी होती है, उसकी चुंधिया देने वाली लाइटें खत्म हो जाती हैं, वो सुर्खी मायल हो जाता है, वो खुशगवार बन जाता है, वो खूबसूरत और दिल लुभाने वाला नजर आ रहा होता है। हुजूर मेरे प्यारे नबी, मेरे प्यारे महबूब, उस वक्त का जो सूरज होता है वो आपके सुर्खी मायल चेहरे की मिसाल पेश कर रहा होता है। इसलिए हुजूर वो वक्त चूंकि आपके चेहरे की मिसाल पेश कर रहा होता है, इसलिए मुझे उस वक्त के सूरज की कसम, सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। आपके चेहरे की कसम, आपके सुर्खी मायल चेहरे की कसम। इंसान खसारे में है, इंसान अरे, कौन सा इंसान? हर इंसान, अरे, हर इंसान। जिंदगी कम हो रही है ना, एक एक घड़ी कम हो रही है, मौत की तरफ भाग रहे हैं आप सब मौत की तरफ भाग रहे हैं, खसारे में जा रहे हैं ना। अरे, आप चाह के भी इस खसारे को रोक नहीं सकते, आप चाह के भी वक्त को रोक नहीं सकते, आप चाह के भी अपनी जिंदगी को बचा नहीं सकते। ये जिंदगी का एक एक लम्हा ये ऐसे पिघल रहा है जैसे बर्फ पिघल रही होती है कि उसे आप रोक नहीं सकते, वो पिघल रही है, वो खत्म होने की तरफ है। इसी तरह आपकी उम्र भी एक एक लम्हा खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। फरमाया क्या कोई इस खसारे से बच भी सकता है? सुभान अल्लाह। कोई इस खसारे से, इस घाटे से बच भी सकता है? हाँ। फरमाया क्या हमारे पास हाल नहीं है? मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मैं कायनात पर कुदरत रखता हूँ, सुभान अल्लाह। मुझे पता है इंसान तू अपनी इस जिंदगी को अगर काम में ले आए, अल्लाह की रजा और जस्तजू में आ जाए, इल्लल्लज़ीना आमनू, बचाने का तरीका क्या है? नुकसान से खुद को बचाने का तरीका क्या है? इंसान वैसे तो तू घाटे में ही घाटे में है, लेकिन बचाने का रास्ता ये है तू ईमान कबूल कर ले। सुभान फिर ईमान कबूल कर लेना काफी नहीं, वअमिलुस सालिहात, नेक काम भी कर, चोरी न कर, डकैती न कर, फजूल गोई न कर, बेहयाई न कर, गलत किरदार न कर, झूठ न बोल, नमाजें पढ़, नेक काम कर, अल्लाह को राजी कर। वअमिलुस सालिहात, और अगला काम वतवासौ बिल हक, एक दूसरे को हक की तलकीन भी कर। सुभान अल्लाह। ये नहीं कि तू नेक पारसा बन के अपने हुजरे में छुप के बैठा हुआ है, नहीं। अगर कहीं गलत काम हो रहा है तो उसको नसीहत भी जाके कर, हाँ, बेशक बेशक। कि भाई ये गलत काम, ऐसा मत है, ये गलत काम हो रहा है, ये भी तेरी जिम्मेदारी है, वरना तू खसारे में है। हाँ, तू तो कुछ नहीं कर रहा ना, ना, तू तो घर बैठा है, तू तो नमाजें पढ़ रहा है, तू तो तहज्जुद भी पढ़ रहा है, तू तो इबादत भी कर रहा है, तू तो अपने फहम में अल्लाह को राजी कर रहा है। लेकिन अगर तू इस जिम्मेदारी को छोड़ रहा है तो फिर तू भी खसारे में है। खसारे में है। हक, खसारे में है। वतवासौ बिल हक, हक की तलकीन करो। कोई गलत काम कर रहा है उसको रोको,
वतवासौ बिस्सब्र, सबर की भी तलकीन करो, एक दूसरे को नसीहत करो सबर की भी। अगर किसी मुसीबत में पड़ गए हो वावेला ना करो, सुभान अल्लाह, मेरी तौबा। नेमत मिली शुक्र करो। अगर मुसीबत का शिकार हो गए, आजमाइश का शिकार हो गए, अल्लाह का फिर भी शुक्र करो और सबर करो। शुक्र